Hello, good morning everyone. This is Rajesh and today once again I'm coming with a very interesting topic, that is the geography chapter 2 inside our art. Dear student, if you remember, in our previous video we already studied about the interior part of our earth. There we already saw that interior of the earth made up of three concentric layers: crust, mantle and core. Crust layer divided into two parts: continental layers, or you can say that continental mass, and second one is the oceanic mass. Continental mass, the depth of the crust, actually we call it the depth of the crust is about 35 km. From the continental mass, the depth of the crust is 35 km. It's a huge kilometer. अब ऐसा नहीं सोचेंगे कि इट इज ए थिनेस्ट लेयर, दैट मीन्स सर 35 किलोमीटर बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा का कंपेयर हम इस तरीके से कर सकते हैं कि रेडियस ऑफ द अर्थ इज मोर देन 1000 किलोमीटर. सो फ्रॉम 1000 किलोमीटर 35 किलोमीटर इज a small quantity, that means small depth. All the three layers, thinnest layer is the crust. So from continental mass, the depth of the crust is 35 km, but from the oceanic mass, the depth of the crust is 25 km. The difference between two depth of the crust is that the density of continental mass from to the crust is minimum, and the density of the oceanic mass is maximum, because they are the soil of this oceanic mass is compressed highly with a huge temperature and pressure. So, and the next topic we discuss the kinds of rocks. In our previous video we discussed about igneous rocks. Igneous, the word comes from a Latin word ignes, it means fire. So without any hesitation you can say that the rocks formed by the fire known as igneous rocks. So one question must be arise in your mind, कि from where this fire comes and how from the fire rocks are formed. So if you remember, in our video we discussed about volcanic eruptions. Actually, in the mantle, the rocks in the form of magma, aqueous form. That means it's not complete solid, not complete liquid. Mix both of you. Mix both solid and liquid, and they have a huge pressure, huge heat, और इतने गर्म होते हैं कि वे जब हीट होगा तो क्या होगा, एनर्जी प्रोवाइड होगी, हीट एनर्जी, एक प्रेशर होगा और वो इरप्ट करते हैं. सो दीज magma come through the volcanic eruptions, and on the surface of the earth, when they cool down they change into igneous rocks. For example, granite is the igneous rocks, and those videos we already discussed that igneous rocks are formed two types. Number one, extrusive, and number second, intrusive. Extrusive rocks and intrusive rocks. देखो वर्ड से बहुत क्लियर है. एक्सट्रूसिव इज बाहरी, इंट्रूसिव इज आंतरिक. सो एक्सट्रूसिव इट मीन्स कि when magma completely come out on the surface of the earth and cool down, this is known as the extrusive rocks. But some magma do not come out on the surface of the earth. They settle down interior of the earth, I mean crust layer, and when they cool down, when we dig out, the rocks are formed. These rocks known as the intrusive rocks. So there are three kinds of rocks we discussed in our previous video, that is the igneous rocks,
sedimentary rocks and metamorphic rocks. So igneous rocks in detail we discussed. Today our topic is sedimentary rocks and metamorphic rocks. First of all, we try to know what the meaning of sedimentary rocks. So sedimentary is a Latin word like igneous rocks. जैसे igneous rocks एक Latin word से आएगा. Same sedimentary rocks also come from Latin word known as sedimentum. Which Latin word? Sedimentum. Sedimentum means settle down. जो settle down हुआ है, जो इकट्ठा हुआ है एक जगह. So how these rocks form? ये rocks कैसे form होता है, इसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं. Main settle down. How these rocks form? Actually, sedimentary rocks or metamorphic rocks, both are made up of igneous rocks. ये सारे igneous rocks से ही बने हैं. So क्या डिफरेंस है igneous rocks, sedimentary rock और metamorphic rocks, और कैसे चेंज होते हैं, इसको हम डिस्कवर करेंगे. So how sedimentary rocks form? First of all, igneous rocks, जो आप समझ चुके हैं कि igneous rocks कहाँ से आती है. मग्मा है जो इनसाइड द अर्थ, जो मेंटल है एंड मेंटल से बाहर निकलता है और अर्थ पे आता है, कूल होता है और रॉक्स में चेंज हो जाता है कूल डाउन होने के बाद. अक्सर आपको वीडियो वगैरह में इस तरह के यूट्यूब वीडियो वगैरह में आपको नजर आएगा कि हाउ वोल्केनिक इरप्शंस कैसे जो है मग्मा जो है इन द फॉर्म ऑफ लावा कैसे बाहर आ रहे हैं और फिर वो सेटल डाउन एक दो दिन में नहीं होते. दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कूल डाउन एंड दे चेंज इनटू रॉक्स. So igneous rocks when roll down, जब igneous rocks आते हैं और roll down होता है. roll down का सेंस क्या है? सपोज कर लो हाइयर प्लेस है, लोअर प्लेस है, roll down हुआ थ्रू द wind, थ्रू द वाटर, किसी भी एजेंट के थ्रू. so when they roll down, जब roll down होगा like how soil form, सेम कॉन्सेप्ट है ये. तो जब ये roll down होगा when क्या होगा? they must be cracked into small pieces. ये क्रैक हो स्मॉल पीसेस में, ब्रोकन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट, और ये स्मॉल फ्रैगमेंट छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं. एंड दिस स्मॉल फ्रैगमेंट कलेक्ट बाय विंड वाटर. रेन हो गई, हायर टू लोअर फ्लो होगा. ऑक्सीजन देखते हैं हायर से लोअर की तरफ फ्लो होता है. तो विंड फ्रैगमेंट को क्या करते हैं? अपने साथ लाते हैं, चाहे वो विंड हो चाहे वो वाटर हो, और एक जगह ला करके सेटल डाउन, एक जगह वो ला करके छोड़ देते हैं. अगर हम इसको एक एग्जांपल सुनिए. सपोज कर लो हाइयर प्रेशर, ये लोअर प्रेशर, ये हमारा ग्राउंड होगा. व्हेन these rocks roll down, they collide to each other also. ये दोनों टकरा भी सकते हैं. And when they collide, एक तो collide इनके surface से ही हो रहा है. When two surface meet to each other, they collide हो भी रहा है यहाँ पे. Maybe two or more rocks collide to each other also. And when this happen, these igneous rocks change into small fragment. और ये small fragment में हो गए. Suppose कर दो ये small fragment हो गए, छोटे छोटे टुकड़े हो गए. When this water or wind फ्लो थ्रू, अभी जैसे जैसे नीचे आएंगे इनके साथ आ जाएगा और लागू हो सकता है कि कोई एक प्लेस पे इनको क्या करें, सेटल डाउन कर दें. और ये जो सेटल डाउन होगा दैट फॉर्म द सेडिमेंटरी रॉक्स, जो सेडिमेंट हुआ एक जगह ला करके इकट्ठा होगा. These loose sediments are compressed and hardened to form layer of rocks. अब यही जो कंप्रेस हुए हैं, ये जो रॉक्स है स्लोली डिकम्प्रेस, कंप्रेस मींस प्रेशर होने के कारण, इनके ऊपर प्रेशर लगने के कारण ये लेयर में चेंज हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं लेयर में. एंड दिस जब ये लेयर में चेंज होते हैं तो ये तरह तरह ऐसे ऐसे लेयर बनाते हैं और लेयर बना के वन बाय वन ये लेयर बनाए और ये एक रॉक्स में चेंज हो जाते हैं. दिस नोन एज द सेडिमेंटरी रॉक्स. वन एक और इसमें देखेंगे. These rocks may also contain fossils of plant, animal and other microorganisms. Fossils, ये हिस्ट्री में भी वर्ड आया होगा.
साइंस में भी वर्ड आया होगा, सो आई एम श्योर कि आप इस वर्ड से परिचित भी होंगे। एक बार हम इसको कर लें कि क्या है फॉसिल्स। एक्चुअली फॉसिल इज द पार्ट ऑफ डेड एंड डिके मटेरियल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो उनके गले सड़े मृत हैं, उनके शरीरों से जो बना है लिविंग, जिसमें कार्बन है, जो भी लिविंग थिंग से कार्बन है, जो जलने के बाद स्मोक दे ब्लैक, दैट मीन्स कार्बन। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो उनके डेड डिके मटेरियल्स हैं, ये भी इस रॉक्स में कंटेन होते हैं। हाउ? सपोज करो, देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो हम देख ही नहीं सकते, सो मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अराउंड अस, बहुत सारा है। और यहाँ तक कि हम तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इस समय पूरा वर्ल्ड परेशान है ना। साइंस में आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के काइंड्स भी पढ़े होंगे, एक बार आप इसको रिमेम्बर कर लीजिए। हर कॉन्सेप्ट का कहीं कहीं यूज होता है। सपोज लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल वी टेक animal. When we say that animal, it may be human or animals too. So when the guys जब मर गया, skeleton ये remain there, skeleton तो उसका यही रह जाएगा। When this fragment come down, maybe ये इसके ऊपर आकर सेटल डाउन हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लेयर्स बने हुए हैं, वन डे में होता नहीं है, इसी बीच में कोई डेड और डिके मटेरियल है, स्केलेटन है, वो यहाँ पड़ा रह गया, फिर इसके ऊपर लेयर बन गए। तो ये स्केलेटन क्या है? लिविंग थिंग्स है, फॉसिल्स है, चाहे वो प्लांट के हो, एनिमल्स के हो या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हो, तो ये तो इसी रॉक्स में रह जाते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन फॉसिल्स ऑफ एनिमल, प्लांट और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज, फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन ऑफ सैंड। सैंडस्टोन आपने देखा होगा, सैंडस्टोन देखिए, लगेगा कि आपको स्टोन देखने पे कि उसमें सैंड के पार्ट्स नजर आ रहे हैं, लेयर बाय लेयर। इसको हम कहते हैं सैंडस्टोन। सो सैंडस्टोन इज द एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स व्हिच मेड अप ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड व्हिच सेटल डाउन on one layer to another layer and form these rocks. So sandstone is the example of sedimentary rocks. अभी हम बार-बार क्यों कह रहे हैं? ग्रेनाइट हमने इग्नियस रॉक्स के बारे में बताया था, सैंडस्टोन आपको एग्जांपल दे रहे हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ भी आते हैं कि which rocks is in form of sedimentary rocks, which rocks in the form is a kind of metamorphic rock or igneous rocks. So it is very important to remember the example of these rocks, I mean igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. The next one is metamorphic rocks. डिफरेंस यहाँ आप पॉइंट करेंगे। अभी जो हमने igneous rocks, sedimentary rocks को डिस्कस किया है, they came from the Latin word, but metamorphic rocks is came from the Greek word. ये Greek word से आया है, इसकी ओरिजिन कहाँ है? ग्रीक है। एंड ग्रीक वर्ड क्या है? मेटामॉर्फस। मेटामॉर्फस मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म, ये फॉर्म को चेंज करता है, दैट मीन्स वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बहुत सारे इसके फैक्टर्स होंगे, टेम्परेचर होगा, एयर होगा, प्रेशर होगा। तो ये रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स, क्योंकि ये मेटामॉर्फस है, इट मींस चेंज द फॉर्म, ये फॉर्म को चेंज कर लेता है। इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखो इस तरह का इग्नियस रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स चेंज हुआ, किसमें चेंज नहीं हुआ, एक्चुअली उसको ब्रोकन डाउन हुआ, उसके पार्टिकल सेटल डाउन हुए, तो वो हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स बना। और मे बी सेडिमेंट्री रॉक्स एंड igneous rocks can change in the form of metamorphic rocks under huge pressure and temperature। कि ह्यूज प्रेशर और टेम्परेचर के अंदर ये igneous rocks और sedimentary rocks change into metamorphic rocks। एग्जाम्पल क्ले, जो मिट्टी है, change into slag। So in your examination, if anybody asks you write
rocks which is a metamorphic rocks. Without any institution you can write slate. So slate made up of clay. अब ये कैसे बनता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लाइमस्टोन चूना पत्थर इसको कहते हैं, लाइमस्टोन इनटू मार्बल। तो लाइमस्टोन क्या कर रहा है, अपने फॉर्म को चेंज करके मार्बल, क्ले क्या है फॉर्म को चेंज करके स्लैग। सो हाउ कैसे होता है? सो आपको अगर हम लेयर की बात कर लें, अब लेयर की बात हम ये अर्थ के इनसाइड देख रहे हैं, यहाँ पे रॉक्स हैं। अब रॉक्स हैं तो ये बाहर जा भी नहीं जा सकते, और मे भी इसका टेम्परेचर जैसे से ये साइड जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और लेयर इसके ऊपर भी आ जाते हैं तो ये प्रेशर भी है। तो ह्यूज प्रेशर एंड ह्यूज टेम्परेचर these rocks slowly change into another form, and these rocks may be igneous rocks or sedimentary rocks, and when they change into another form, such kind of rocks known as the metamorphic rocks. So dear student, I hope कि आपको ये तीनों रॉक्स एक बार और याद कर लेंगे, और तीनों रॉक्स के डिफरेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे। 3 रॉक्स के बारे में हम बात किए हैं, काइंड्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। एग्जांपल्स भी आपके पास है, आप अपने पास से भी अदर एग्जांपल्स को सर्च करेंगे, आप हमें बताएंगे, अपने नोट्स में उसको लिख सकते हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट डोंट ट्राई टू राइट ओनली क्वेश्चन एंड आंसर इन योर नोटबुक। वी सॉर्ट आउट ऑल द नोट्स and write on the blackboard. So if possible, write down what we discuss in our classes, in our videos. Most important thing is that which you जो आप समझ सकते हो क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, you can write on your notebook, and after that you can write question and answer also, which I given in the form of PDF. I hope you remember all my words and must be follow my instruction. Till then, have a nice day. We will meet in next video with the next topic, that is the cycle of rocks. Till then, have a nice day.